Good morning, students. Up to last class, we have seen that the pollen grains transfer from anther to stigma, anther to stigma by various vectors. The various vectors may be air, may be water, may be insects or birds. Insects, butterfly, honeybees, bumblebees and some of the moths are involved in this process. The process of transfer of pollen grains from anther to stigma is called as pollination. Now, why the pollination is so important? Actually, flower produce sweet smell to attract the insects. Number one. Plants also produce nectar to feed the insects and animals. To feed the insects and animals. When the butterfly sit over the flower to suck the nectar, nectar चूसने के लिए, the pollen grains stick over its wings, its legs, and in this way, when this same butterfly sit over another place, then these pollen grains transfer to another flower, stigma of the flower. Look here, how the process taken place over here. Suppose this is a stamen, and stamen, this is the filament, as you know when, and this is anther. In this anther, pollen grains are produced. By the pressure of pollen grains, it get burst and release pollen grains. Pollen grains are yellow colored powdery material. When these pollen grains release over here, this is the female reproductive part. This is the female reproductive part of the flower. Look here. In this female reproductive part of the flower, look here, this is the stigma, this one is style, and this is ovary. This is ovary. Ovary consists a number of ovules. Ovules कैसे होते हैं? ऐसे. Ovules like this. There is no single ovule. There may be a number of ovules are there. बहुत सारे ऐसे ovules यहाँ पर हो सकते हैं. Yes. Ovary may consist a number of ovules like this. ऐसे बहुत सारे ovules यहाँ पर हो सकते हैं. हम लोग केवल एक सिंगल की बात करेंगे. Now pollen grains transfer from anther to stigma, and these pollen grains start to germinate over here. Pollen grains start to germinate. ये pollen grain germinate हुआ और एक ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है बच्चों. There are a number of pollen grains, so all the pollen grains produce the pollen tube like this. सभी pollen grains अपनी अपनी pollen tube बनाते हैं, लेकिन जो pollen tube सबसे पहले यहाँ पहुंचेगी वो इसको फर्टिलाइज करेगी, ओव्यूल को फर्टिलाइज करेगी. तो ये pollen grain यहाँ पर ऐसे ग्रो करती जाएगी. अल्टीमेटली it reach up to this structure, and this structure known as ovule.
ये ओव्यूल तक पहुंच गई और जैसे ही पोलन ट्यूब यहां पर पहुंचती है, पोलन ट्यूब गेट बस्ट एंड रिलीज मेल गैमेट, और यहां पर मेल गैमेट्स रिलीज हो जाते हैं। ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर के क्या बनाएंगे, हमारा एम्ब्रियो बनाते हैं। तो एम्ब्रियो इक्वल टू मेल गैमेट, और मेल गैमेट कहां से है बच्चों, फ्रॉम दी पोलन ट्यूब। मेल गैमेट्स कम फ्रॉम दी पोलन ट्यूब। नाउ फीमेल गैमेट्स प्लस फीमेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन दी यस ओव्यूल। फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन ओव्यूल। कहां प्रेजेंट होती है, ओव्यूल। तो बच्चों इस तरीके से यहां पर क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। अब ये एम्ब्रियो कहां है, इस ओव्यूल के अंदर। ये ट्राई टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट। ये वाला जो पार्ट है ना, ये बनाएगा एम्ब्रियो। दिस विल एम्ब्रियो। ये ओव्यूल क्या करेगा बच्चों, ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल मॉडिफाइड इनटू सीड्स। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट तो क्या बना, एम्ब्रियो। इसको यहां से हटा दो, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस दी एम्ब्रियो। ओव्यूल, नाउ ओव्यूल डेवलप इनटू सीड्स। Ovule develop into seeds. There are a number of ovules are there, तो seeds भी बहुत सारे हो सकते हैं। A flower may consist a number of seeds. यहां पर बहुत सारे seeds हो सकते हैं। बच्चों आफ्टर पॉलिनेशन हमारे एंथर का कोई रोल रहा क्या, कोई रोल नहीं। नाउ स्टेमन ड्राई अप एंड विदर्ड। स्टेमन सूख गया, सूख करके खत्म हो गया, गिर गया नीचे। इसका स्टिग्मा का कोई रोल है नहीं। नाउ स्टिग्मा गेट विदर्ड, ड्राई अप। स्टाइल कोई काम नहीं, तो बचा क्या, ओवेरी। नाउ ओवेरी डेवलप इनटू फ्रूट। ओवेरी डेवलप इनटू फ्रूट। तो हमने क्या समझा, व्हाट वी हैव अंडरस्टूड बाय दिस प्रोसेस। पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। नाउ स्टिग्मा, ऑन स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स germinate and they produce the male pollen tube and they transfer the male gamete up to the ovule. After fertilization, the meeting of male and female gamete, the process of meeting of male and female gamete is known as fertilization. What we call it, fertilization. This process is known as fertilization. सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। सो व्हाट इज दी फर्टिलाइजेशन, क्या लिखोगे आप लोग, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। अब यहां पर ये SAB सही है और ZA लिखा जाए तब भी सही है, बोथ आर करेक्ट। सो द प्रोसेस ऑफ fusion of male and female gametes, male and female gametes, the process of fusion of male and female gametes is called as fertilization. Got it? Now fertilization, after fertilization it produces the embryo, ovule modify into seeds, ovary modify into fruits. तो जो भी हम लोग फ्रूट्स खाते हैं बच्चों, फ्रूट्स आर मॉडिफाइड ओवेरी। फ्रूट्स आर मॉडिफाइड ओवेरी। फ्रूट्स क्या होते हैं, मॉडिफाइड ओवेरी होते हैं।
Now look seeds. These seeds may be of pea in case of apple. Type of seeds. Nuts थोड़े हार्ड होंगे, जैसे हमारी सुपारी होती है. आलमंड, पिस्टेच्यू, अखरोट जिसको हम लोग एप्रिकॉट कहते हैं. बीन्स, पल्सेस, सोयाबीन. These are the type of seeds. Beans. So seeds may be of different types: pea, apple and beans. Now अगर हमको बच्चों एक सीड को स्टडी करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल, हमारे घर में चना होता ही है. एक कुछ चने ले एंड सॉक देम इन दी वाटर, और उनको पानी के अंदर सॉक करने के लिए छोड़ दें. पानी में डुबा करके छोड़ देंगे. एक दिन, 2 दिन, एक दिन पूरा 24 घंटे रखा. दूसरे दिन उसको बांध करके एक कपड़े में बांध करके रख देंगे. पुट देम कवर्ड इन अ क्लॉथ, नॉट ड्राई क्लॉथ, वेट क्लॉथ. गीले कपड़े में बांध करके उसको रख देंगे. तो नेक्स्ट डे जैसे ही नेक्स्ट डे क्या होगा, वहां पर उसमें जर्मिनेशन हो जाता है. अब जो हमने क्या किया, सपोज दिस इज द सीड एंड दिस सीड कवर्ड विद अ हार्ड कोटिंग, एंड दिस सीड कवर्ड विद अ हार्ड कोट, एंड दिस कोट इज नोन एज सीड कोट. क्या होता है बच्चों? दिस इज नोन एज सीड कोट. ये जो सीड कोट है, सीड कोट इट इज थिक. किसी में ज्यादा मोटा होता है, किसी में कम थिन होगा. तो इट डिपेंड अपॉन दी डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स. दी सीड कोट कलर, तभी इसी सीड कोट कलर से तो हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं. शेप से, इनके कलर से. किसी में ग्रीन कलर का होगा, मसूर की दाल है पिंक कलर का, ब्राउन, राइट. दी सीड कोट मे बी ऑफ डिफरेंट इन कलर. और ये सीड कोट क्या करता है? इट प्रोटेक्ट दी एम्ब्रियो इनसाइड. ये अपने अंदर जो एम्ब्रियो होता है, इस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. इट प्रोटेक्ट दी एम्ब्रियो. सीड कोट फंक्शन क्या हो गया? प्रोटेक्ट दी एम्ब्रियो. एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है. जो इनके अंदर एम्ब्रियो है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? सीड कोट. हमने क्या किया, अब इसको यहां पर ये ऐसे जर्मिनेशन हो ना, ऐसे, तो ये ऐसे यहां पर एम्ब्रियो दिखने लगेगा. तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, ऐसे इसको खोल देंगे थोड़ा, उससे हम इसको खोल देंगे. जैसे ही खोला तो हमको एक ऐसे स्ट्रक्चर लग जाता है. यहां पर ये ऐसे, ये हमने इसको खोल दिया. ये ऐसे 2 पार्ट में लगाएंगे, 2 पार्ट में टूट गया. बच्चों ये जिससे ब्रेक हुआ, दीज आर दी, ये बड़े बड़े पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कोटिलीडन्स. क्या कहते हैं? कोटिलीडन्स. कोटिलीडन्स ऑल्सो नोन एज सीड लीव्स. दीज आर ऑल्सो नोन एज सीड लीव्स. Cotyledons also known as seed leaves. And these seed leaves function storage of food storage. So food storage is the main function of seed leaves, cotyledons. Cotyledons associated with the storage of food. यहां पर एम्ब्रियो है. तो बच्चों एक तो हो गया सीड कोट. तो सीड के कितने पार्ट हो गए? हाउ मेनी पार्ट्स डू हैव अ सीड? सो सीड हैविंग 3 पार्ट्स. अ सीड हैज 3 पार्ट्स. Which one are these parts? Number 1 seed coat. Number 1 seed coat. Number 1 part is the seed coat. This is the first part, seed coat. Second one, cotyledons. Cotyledons.
सीड कोट प्रोटेक्शन का काम करेगा, कॉरिडोर्स स्टोरेज ऑफ फूड, एंड थर्ड पार्ट इज दी एम्ब्रियो। थर्ड पार्ट इज दी एम्ब्रियो। तो सीड हैविंग थ्री पार्ट्स, सीड कोट, कोटिलिडन्स, एंड थर्ड वन आर दी embryo. Embryo develop into new plant. Embryo develop into new plant. Got it? यहां तक बात समझ में आ गई? एक बार और देखें। अब बच्चों सीड बनके तैयार हो गया है। सो व्हाट इज अ सीड? अ टाइनी स्ट्रक्चर, a tiny structure which gives rise a new plant, is called seeds, is called a seed. Got it? तो टाइनी प्लांट, इन प्लांट को हम लोग क्या करेंगे बच्चों? टाइनी स्ट्रक्चर, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सीड्स। इनको हम लोग क्या कह देंगे? सीड्स। अब ये सीड्स भी बन गए। अब सीड्स को क्या मिलेगा बच्चों? क्या क्या चाहिए? फॉर सीड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, सीड विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? जर्मिनेशन ऑफ सीड। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्लांट, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट from a seed. The process of development of a new plant from a seed is called as germination. अब बच्चों what are essential conditions for the germination? Conditions for germination, क्या क्या रिक्वायर्ड होगा जर्मिनेशन के लिए? Conditions for germination. What are the essential conditions for germination? Number 1, water. बच्चों नंबर 1 कंडीशन क्या है? वाटर। सेकंड कंडीशन एयर, हवा मिलनी चाहिए, पानी भी मिले, हवा पानी चाहिए। एंड नेक्स्ट वन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वार्मथ। जब तक इनको थोड़ी गर्मी नहीं मिलेगी तब तक सीड जर्मिनेट नहीं होंगे। जब तक इनको थोड़ी सी गर्मी नहीं मिलेगी तब तक सीड जर्मिनेट नहीं होंगे। तो क्या क्या कंडीशन हुई? व्हाट इज अ सीड? अ टाइनी स्ट्रक्चर विच डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, गिव्स राइज अ न्यू प्लांट कॉल्ड एज सीड। Germination, the process of development of new plant from a seed. Essential condition for germination: water, air and warmth, गर्मी। Now, what happened during the germination? इस germination में होता क्या है? Try to understand. बच्चों जैसे ही हमने सीड को क्या किया, वी गिव दी वाटर, सीड को जमीन में लगाया, वी पुट दी सीड्स इनटू दी सॉइल। अब जैसे ही सॉइल के अंदर लगाया, लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालते हैं, जमीन में खोदेंगे, थोड़ा सा उसके अंदर पानी डालें। अब ये पानी डाला, वाटरिंग किया, जैसे ही ये सीड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, सीड एब्जॉर्ब दी वाटर, सीड कोट गेट बस्ट, सीड
absorb water, seed absorb water, सीड कोट, तो सीड कोट जो होता है वो बस्ट होता है, सीड कोट बस्ट। अब ये सीड कोट बस्ट हो गया। जैसे सीड कोट बस्ट हुआ, अब यहां पर सीड कोट के बस्ट होने से अब यहां पर क्या होगा, एम्ब्रियो स्टार्ट टू डेवलप। अब ये एम्ब्रियो की सेल्स होती हैं, सेल्स स्टार्ट टू डिवाइड, सेल्स ऑफ एम्ब्रियो, सेल्स ऑफ एम्ब्रियो स्टार्ट टू डिवाइड। ये सेल्स आपस में डिवाइड करने लगते हैं और सीड यहां पर बढ़ने लगता है, एम्ब्रियो डेवलप होने लगता है। अब जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ है, इस एम्ब्रियो में, अब ये एम्ब्रियो में क्या होता है, सबसे पहले क्या डेवलप होता है, रूट पार्ट। तो एम्ब्रियो डेवलप रेडिकल एट फर्स्ट, रेडिकल एट फर्स्ट, रेडिकल, रेडिकल से क्या बनती है बच्चों, तो पहले एम्ब्रियो से क्या डेवलप होती है, रूट डेवलप होती है। रूट इज डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियो, रूट इज डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियो। अब ये लेटरोल, अब इसका एम्ब्रियो का सेकंड पार्ट होता है बच्चे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्ल्यूमूल। तो रेडिकल से क्या डेवलप हुआ, रूट, प्ल्यूमूल डेवलप्स इनटू, प्ल्यूमूल डेवलप्स इनटू शूट, शूट, स्टेम एंड लीव्स। ये यहां पर लीव्स डेवलप हो जाते हैं। तो एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो, नंबर 1 रेडिकल, सेकंड 1 प्ल्यूमूल, रेडिकल एंड प्ल्यूमूल। रेडिकल डेवलप्स इनटू रूट, प्ल्यूमूल डेवलप्स इनटू शूट, लीव्स, स्टेम। अब बच्चों जैसे ये लीव्स बन जाती हैं, अब यहां पर स्टोर फूड का काम खत्म, स्टोर फूड का काम खत्म। तो कोटिडन्स ड्राई अप एंड फोल्ड डाउन, कोटिडन्स जो होते हैं सूख करके गिर जाते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स। बात समझ में आ गई।